دوستو بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ پہلی چنگاری ناول کی 265 ایپیسوڈ میں ویلکم۔ دوستو آپ کو کہا تھا نا آپ کو مکمل ناول ملے گا، جیسے بھی ہو بس اپنی سپورٹ دکھاتے رہو۔ چلتے ہیں آج کی مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ کون سا یہاں تھے؟ ہم فاقوں پر اتر آئے تھے، آخر پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، یہ کہہ کر عظمیٰ بھی رونے لگ گئی۔ کسی حد تک اس کی بات بھی ٹھیک تھی، میں تو مہینہ بھر غائب رہا تھا اور جانے سے پہلے پریشانی ہی اتنی تھی کہ عظمیٰ کو تنخواہ بھی نہیں دے سکا۔ میں نے کہا وہاں تو اور بھی عورتیں ہوتی ہیں، پھر اس نے کیسے اتنی ہمت کی؟ عظمیٰ بولی، نسرین جرت خالے کے پاس درختوں کے نیچے ساتھ لینے کے لیے بیٹھی تھی۔ باقی سب کافی دور تھے۔ اس حرامی نے موقع دیکھ کر اس کی زبردستی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ بعد میں اپنے ساتھ بندے لے کر ہمارے گھر آیا اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر گیا تھا۔ خالے کے پاس درختوں والی جگہ کا سن کر میں جھٹ سے سمجھ گیا کہ عظمیٰ ان درختوں کی بات کر رہی ہے جہاں عظمیٰ صدف سویرا کو مل چکا تھا، کیونکہ اس جگہ خالے کے ساتھ وہی درخت تھے۔ اس کے علاوہ کہیں اور درختوں کا جوڑا نہیں تھا۔ میں ذہن پر زور ڈالنے لگا کہ یہ زمین کس کی ہے، مگر مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ یہ جاننے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ میں کچھ دیر تک سوچنے کے بعد آنٹی کی طرف دیکھ کر بولا، آنٹی آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمین کس کی ہے؟ آنٹی بولی ساتھ والے گاؤں کا زمیندار ہے، اس کی زمین ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ آنٹی بولی فلک شیر، اور اس کے بیٹے کا نام جہانگیر ہے۔ میں نے ہم کہہ کر کہا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایسے حرامیوں سے مجھے اچھے سے نپٹنا آتا ہے۔ آپ اپنے گھر جائیں اور خود کو بالکل ریلیکس کر لیں، ادھر میں جانوں اور وہ حرام کا جنا جائے۔ آنٹی بولی وہ بدماش قسم کا آوارہ لڑکا ہے، میں تو کہتی ہوں دفع کرو، خود ہی اپنی موت مرے گا، پہلے ہی تم اتنی پریشانی میں ہو۔ میں نے کہا آپ کی پریشانی میرے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے، آپ بس کل تک انتظار کریں، اس کے بعد نتیجہ اب خود دیکھ لیں گی۔ یہ کہہ کر میں نسرین کی جانب بڑھا۔ نسرین نے کندھوں پر بازو رکھ کر بولا، ویسے تو تم میرے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی تھی، پھر کیسے اتنی کمزور پڑ گئی؟ نسرین میری بات سن کر کچھ کہنے کی بجائے میرے سینے میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے بولی، اسے چھوڑنا نہیں، تم نے کتے کی موت مارنا ہے۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، بس کل کا سورج طلوع ہونے دو، اس کے بعد اسے تمہارے قدموں میں پاؤں گا، پھر تم خود اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لینا، بس میں اپنی تسلی کر لوں گا۔ اب خوش؟ نسرین ناک سکڑتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا یہ ہوئی نہ بات، اب آپ لوگوں نے رونا نہیں ہے۔ آنٹی ایک بار پھر اس مسئلے کو دبانے کے لیے میری منت سماجت کرنے لگی، مگر میں نے آنٹی کو سختی سے چپ رہنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد میں نے آنٹی لوگوں کو رخصت کیا، اور جب تک آنٹی لوگ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے تب تک میں دروازے میں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی آنٹی لوگ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، میں نے گن مینوں کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، بیٹھک کا دروازہ بند کیا اور اندرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ میں بھابھی کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے بھابھی نمودار ہوئی۔ بھابھی کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھابھی بولی، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ میں تو ان کو بھگانے کے لیے آ رہی تھی۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ فضول میں سارا شہر کا شہر من اٹھا کر لے کر بندے کا ٹائم برباد کرنے آ گیا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو گھر پر کوئی کام کاج نہیں ہے۔ آنٹی فوزیہ کے متعلق بھابھی کے منہ سے آگ برستی دیکھ کر مجھے غصہ تو بہت آیا۔ دل کیا کہ بھابھی کو دو چار کھڑی کھڑی سنا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دوں کہ تم کن کرتوت کی مانی ہو۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو دور سے بھینچ کر نہ جانے کیسے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ بھابھی نے بھی میرے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بھابھی آگے بڑھ کر میرے قریب آ کر میرے رخساروں کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر مسکا لگاتے ہوئے بولی، اوئے ہوئے لگتا ہے میرے چن ماہی کو مجھ پر غصہ آ رہا ہے۔ میں گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آنٹی فوزیہ کے بارے میں ایسا لہجہ استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے لیے فیملی ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے میں اپنی فیملی کی عزت کرتا ہوں، اسی طرح ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آئندہ ان لوگوں کو عزت و احترام سے مخاطب کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں ان کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔
इतनी संजीदगी और सख्त अल्फाज बोलने के बावजूद भाभी मेरी बात को हवा में उड़ाते हुए मेरे रुखसारों को छोड़कर मेरी कमर में बाजू डालकर बोली, अच्छा सॉरी बोल दिया ना, आइंदा नहीं बोलूंगी। गलती हो गई, अब जाने दो गुस्से को। मैं भी उनकी इज्जत करती हूं। पहले कभी मेरे मुंह से उनके बारे में ऐसा कुछ सुना है? आज बस गुस्से में ऐसे ही मुंह से निकल गया। तुम अच्छी तरह जानते हो आंटी फौजिया कितने गलत टाइम पर आई थी। अगर उनको आना ही था तो कुछ देर बाद आ जाती। मैंने कहा अगर उनको मालूम होता कि मैं मुलाकात का प्लान बना रहा हूं तो शायद वो कुछ देर बाद ही आती। मेरी बात सुनकर भाभी जयपत्ती हुए मेरे कंधे में चेहरा छुपाकर बोली, गंदे बच्चे, मेरा मतलब था कि वैसे ही कुछ देर बाद आ जाती। मैंने कहा अब उनको क्या मालूम था कि हम क्या गिल खुला रहे हैं। मेरे लहजे में तसलसल से तलखी कायम थी। भाभी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए एक हाथ नीचे करते हुए बोली, चिल्लू फिर आओ, जो गिल खिलने से पहले मुरझा गया था इसे फिर से खुला दो। मैंने तल्ख लहजे में कहा, लगता है अब यहां पानी देकर नया गिल खिलाना पड़ेगा। मेरे कंधे पर दांत गाड़ेती हुए बोली, ज्यादा शोखी मत बनू, चुप करते कमरे में चिल्लू। पहले ही तुम्हारी आंटी साहिबा ने सारा मूड खराब करके रख दिया है। मैं तो भाभी का बदला हुआ रूप देखकर हैरान था। ये बात भी सच थी कि इंडिया जाने से पहले हमारे बीच जो 2-3 दफा हुआ था, इसके बावजूद हमारे बीच इतनी फरियतनस नहीं हुई थी कि हम यूं खिल ढल कर अपने जज्बात का इजहार करते हुए मुझे फोर्स कर रही थी। शायद यही वजह थी कि मैं बहुत जल्द ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था, वरना इंडिया वापसी के बाद मेरी सोच पहले की निस्बत बहुत बदल गई थी। भाभी बार बार कमरे में चिल्लू कह रही थी, मगर मेरी आंखों के सामने आंटी लोगों के आंसू और दिमाग पर नसरीन के साथ होने वाली ज्यादती और ज्यादती करने वाला जहांगीर नामी बुंदा सवार था। भाभी ने जब देखा कि मेरा ध्यान इसकी इल्तिजाओं की तरफ नहीं बल्कि मैं किसी गहरी सोच में मुब्तला हूं तो भाभी संजीदा होकर बोली, यासिर क्या बात है? मैं कब से कह रही हूं कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं है। अगर मेरा यूं बार बार इसरार करना तुम्हें नागवार गुजर रहा है तो मुझे साफ साफ कह दो। आज के बाद तुम्हें कभी भी इस काम के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। भाभी का ये मकर था। असच में वो तसलसल से मेरी बेरुखी देखकर जज्बात के हाथों मजबूर होकर यहाँ एकदम से अल्फामोशनल हो गई थी। आखिरी अल्फाज कहते हुए तो इसका लहजा भी गुल्लुगीर हो गया था। भाभी का अल्फामोशनल पिन देखकर मैंने भाभी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में पानी तीर रहा था। मैं सर झटक कर बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं एक मसले के बारे में सोच रहा था तो 1 मिनट में रोने लग गई हो। ये कहकर मैंने भाभी को पकड़कर हाथ के अंगूठों से आंखों से बहने वाली आंसुओं की लकीरों को साफ करते हुए कहा, चिल्लू आओ कमरे में चलते हैं। मैं भी अब अपनी आई पर आकर भाभी से खिले ढले लफ्जों में बात करने लग गया था, जिसके नतीजे में भाभी एकदम से गिरगट की तरह रंग बदलते हुए बोली, वो हाय यासिर, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी से ऐसी गंदी बातें करते हुए? मैं अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो शर्म मैंने उतार कर सोफे पर रख दी है। भाभी अपनी गाल से मेरा हाथ झटकुते हुए बोली, इसको तो छोड़ो, जब से आए हो इसके पीछे ही पड़े हो। भाभी से पड़े की बात सुनकर मैं बुड़बुड़ाते हुए बोला, इसके पीछे तो बड़ी देर से पड़ा हुआ हूं, बस मौका नहीं मिल रहा। भाभी मेरी सरगोशी को सुनने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कहा? जरा दोबारा ऊंची आवाज में कहना। मैं मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं कहा जनाब, मेरी क्या जुर्रत के कुछ कह सकूं। भाभी मुझे उंगली दिखाते हुए बोली, यार के बच्चे इंसान बन जाओ, मैं सुन लिया है जो तुम बड़बड़ा रहे थे। मैंने कहा, अगर सुन लिया है तो फिर पूछ क्यों रही हो? भाभी बोली, ज्यादा शोखी बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली, समझ आई ना? मैंने कहा, मुझे तो बड़ी देर की समझ आ गई है, अब तुम्हें समझाने की बारी है। फिर ड्राइंग रूम में आकर मैं उनको इस कमरे की जानिब ले जाने लगा जिसमें तहखाने का रास्ता था। कमरे में दाखिल होकर मैंने खासकर सूफी और माही को तवज्जो के साथ एक एक पॉइंट समझने की हिदायत दी। किसी भी तरह की इमरजेंसी की सूरत में रेसिंग टेबल पर लगे टिश्यू के डब्बे को घुमाकर बेड को सिरका कर तहखाने में दाखिल होकर खुद को सेव करने और फिर कैसे बाहर निकलने का तरीका तफसील से समझाया। तहखाना में जाकर सूफी और माही को दूसरे पोर्शन में निकलने का रास्ता भी दिखाया और कैसे दूसरी तरफ निकलना है, सब पॉइंट भी समझा दिए। सब चीजें समझाने के बाद मैंने दोनों से प्रैक्टिकल करवाकर तसल्ली की।
मुझे ये देखकर खुशी हुई कि दोनों बहनों ने एक बार के बताने से ही अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए हर चीज परफेक्ट तरीके से की। ये सब देखकर आंटी खुश होकर मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगे। जैसे आंटी हमारे साथ रहने पर राजी नहीं थी, वैसे ही मैं भी दिल्ली तौर पर सूफी को वहां रखने पर राजी नहीं था, क्योंकि भाभी के दिमाग पर जिस तरह हवस सवार थी, वो सूफी से जलन की वजह से किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर हालात खराब रहे तो मैं आंटी लोगों को किसी बहाने से कोठी के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दूंगा, जहां वो कंफर्टेबल होने के साथ साथ सेफ भी होंगी। तहखाने के हिस्से की मुकम्मल तफसील बताने के बाद मैंने आंटी की जानिब देखकर बोला, अब बताएं आंटी, कैसा लगा घर? और अब तो आपको कोई टेंशन नहीं? आंटी बोली, नहीं बेटा, मैंने नाम करवा कर क्या करना है। मेरा जो कुछ भी है वो उन बच्चियों का और तुम्हारा ही है। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, यही बहुत है। मैंने कहा, आंटी जब आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो प्लीज फिर ये एहसान वाली बातें मत किया करें। आपके लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो एक बेटे की हैसियत से कर रहा हूं, और माँ के लिए बेटा अगर कुछ करता है तो वो एहसान नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर करता है। इसलिए अब आप लोग इसको अपना घर समझकर आराम से यहाँ रहें। और हाँ, एक बात, और पहली बात तो भाभी के साथ अपने इस घर के मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी। मैं खुद ही भाभी और भाई कैसर के कानों में ये बात डाल दूंगा कि आपने अपना घर बेच कर मजीद पैसे डालकर ये कोठी खरीदी है। आंटी बोली, मगर बेटा, मैंने आंटी के गालों को पकड़कर बोला, आंटी प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना है। मेरी बात सुनकर आंटी खामोश हो गई। सूफी बोली, यासिर, क्या कुछ देर के लिए भी अपने घर नहीं जा सकती? मैंने कहा, अब तुमने वहां क्या करने जाना है? सूफी बोली, हमारे सारे कपड़े और जरूरी सामान उधर ही पड़ा है। मैं सोच रही थी एक दफा जाकर अपना सारा जरूरी सामान ले आऊं। मैं चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, तो जरूरियात जिंदगी की हर चीज यहां मुयस्सर है। फिर भी अगर कुछ लेकर आना है तो 2-4 दिन सब्र कर लो। मैंने परसों सबीहा खातून के पास जरूरी मीटिंग में जाना है। वहां से वापस आकर मौका देखकर तुम्हें ले जाऊंगा। कैसे भी तुम्हारे पास इतने कपड़े तो होंगे कि 2-4 दिन निकाल लो। सूफी बोली, वो भी सूट हैं जो इंडिया से साथ लेकर आई थी। मैंने कहा, फी अलहाल तुम उनसे गुजारा कर लो। 3-4 दिन में मौका देखकर मैं तुम लोगों को साथ ले जाऊंगा, तब एक ही दफा अपना जरूरी सामान उठा लेना। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो मकान बमुआ फर्नीचर सेल कर देंगे और वो पैसे तुम अपने बैंक अकाउंट में रखवा लेना। जब कभी जरूरत पड़े तब निकाल लेना, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को इस घर में नहीं भेजने वाला। सारी जिंदगी यहां ही गुजारोगे। आंटी अफसुर्दा होकर बोले, यासिर पत्थर, वो ना तेरे अंकल की निशानी है। उन्होंने बड़ी मेहनत से वो घर बनाया था। मैंने कहा, मगर आंटी, वक्त के साथ समझौता करके चलना पड़ता है। अब अंकल ने सोचा था घर बनाने के बाद उनको वहां रहना भी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो घर किराए पर दे दें। इसी बहाने माहाना कुछ पैसे भी आ जाते रहेंगे और घर भी साफ सुथरा रहेगा। सूफी की बात मेरे दिल को लगी। मैंने हम करते हुए कहा, हाँ ये भी सही रहेगा। खैर अभी तुम घर की फिक्र मत करो। मुस्कुराते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सियानी हो। माही हंसते हुए बोली, यासिर भाई, जब से ये शेख साहिबा हुई हैं तब इसकी सोच भी शेखों वाली हो गई है। माही की बात सुनकर सूफी इसकी टांग पर हाथ मारते हुए बोली, तुम्हारी बकवास जरूरी होती है। मैं हंसते हुए बोला, बस बस अब लड़ना शुरू मत करना। मैं सामान भिजवा देता हूँ ताकि आप अपनी मर्जी का खाना वगैरह बना लिया करें। सूफी बोली, यासर, इंडिया से आते हुए जो बैग साथ लेकर आए थे इसमें हमारे कपड़े हैं, वो भी लेकर आने हैं। मैंने हाथ मलते हुए कहा, ओके, वो भी आ जाएगा। और कुछ? आंटी बोली, यासर पुत्र, अगर तुम मुनासिब समझो तो कुलजीब को भी हमारे पास भेज दो। इसका बच्चियों के साथ दिल लगा रहेगा। आंटी की बात सुनकर माही चहकते हुए बोली, हाँ यासर भाई, वैसे भी गुलजेब हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। वो भी निकाल लूंगी। मैं हम कहते हुए बोला, ओके जाओ। माही जल्दी से बोली, आपी मैं भी आ जाऊं? सूफी गुस्से से बोली, मैं कहीं सैर करने नहीं जा रही, 2 मिनट में वापस आ रही हूं। तुम उम्मी के पास बैठो। माही मुंह बिसूरते हुए खामोश हो गई। मैं सूफी को लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आकर राहदारी की तरफ बढ़ा। राहदारी में आते जाते नीचे ड्राइंग रूम में मौजूद लोग नहीं देख सकते थे। जैसे ही राहदारी में दाखिल हुए, थोड़ा आगे जाकर दाएं जानिब से टोर नुमा छोटा सा कमरा था।
कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही सूफी रुक कर बोली, यासिर इस कमरे में क्या है? मैंने कहा, पता नहीं, मैंने कभी इस कमरे को चेक ही नहीं किया। ये कहकर मैं दरवाजा खोलकर लाइट जलाकर कमरे में देखते हुए बोला, फिलहाल तो ये खाली है। कमरे का साइज बता रहा था कि ये स्टोर रूम के लिए बनाया गया है। ये कहते हुए मैंने सूफी की कलाई पकड़कर इसे अंदर ले आया। सूफी मेरी जानिब देखते हुए बोली, क्या हुआ? मैं दरवाजा बंद करते हुए सूफी की जानिब बढ़ा। सूफी मेरे इरादे को भांपते हुए बोली, यासिर पागल तो नहीं हो गए? उम्मी और माही नीचे हैं, वो क्या सोचेंगी? मैंने कहा, यही सोचेंगी कि मियाँ बीवी कमरे में गए हैं। सूफी मुझे घूरते हुए बोली, जब मियाँ साहिब बनूंगे तब की बात है, अभी चिल्लू यहां से, नहीं तो मैं जा रही हूं। ये कहकर सूफी साइड से निकलने की कोशिश करते हुए दरवाजे की जानिब लपकी। जैसे ही सूफी मेरे करीब से गुजरने लगी, मैंने भर्ती से सूफी की कमर में बाजू डालकर इसे अपनी जानिब खींचा तो सूफी घूमते हुए बालिफी से करते हुए मेरे सीने से टकरा गई। सूफी अपने सीने के आगे दोनों बाजू करते हुए मेरे कंधों को पकड़कर बोली, यासिर ये क्या पागलपन है? मैंने मुस्कुराकर होंठों को सुकेड़कर कहा, न। सूफी मुझे घूरते हुए बोली, और कुछ? मैंने आंख मारकर फिर से होंठों को सुकड़ा। सूफी शर्माते हुए बोली, पागल तो नहीं हो गए तुम? लोग नीचे हैं, उम्मी जानती है, फिर भी पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। मैं सूफी को चकमा देकर उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, जब अच्छे भले शरीफ बंदे को पागल किया है तो फिर इस पागल का पागलपन भी बर्दाश्त कर। सूफी मुझे पीछे धकेलते हुए बोली, यासिर पागलिज़ छोड़ो मुझे। मैंने कहा, अगर ना छोड़ो तो? सूफी बोली, मैंने धंधी काट दीनी है। मैंने कहा, काट दो। सूफी बेबसी के साथ रवां से लहजे में बोली, यासिर हर बात को मजाक में मत लिया करो, क्यों मुझे उम्मी लोगों के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? मैं हंसते हुए बोला, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा कर सकता हूं? सूफी बोली, तो फिर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अपनी जिंदगी से प्यार कर रहा हूं। सूफी बोली, यासिर उम्मी लोग क्या सोचेंगे? मैंने कहा, वो क्या सोचेंगे दिया ये भी होने सोचना है। सूफी बोली, यासिर तुम नहीं सुधरोगे। मैं रोमांटिक अंदाज में बोला, क्या करूं, तुम्हारा ये जोबन मुझे सुधरने ही नहीं देता। सूफी बोली, यासिर माही ने ऊपर आ जाना है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, वो तब ऊपर आएगी जब उन्होंने हमें देखा होगा। सूफी बोली, तुम कोई जादूगर हो जो उन्होंने तुम्हें देखा नहीं होगा। मैंने मुस्कुराते हुए सूफी की गर्दन की दूसरी साइड पर होंठ रखते हुए कहा, पूरा जादू तुम्हारे सर चढ़कर नहीं बोल रहा। सूफी बेबसी से बोली, यासिर अगर तुमने अभी के अभी मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारी किस्म, मैंने यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। मैं मुतमईन अंदाज में बोला, यहाँ नहीं रहना तो फिर किधर जाना है? सूफी चेहरे का रुख दूसरी जानिब करते हुए बेरुखी से बोली, मैंने अपने घर चली जाना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं हंसते हुए बोला, पागल, नीचे से ऊपर कुछ नजर नहीं आता और ना ही आंटी लोग हमें देख सकते हैं। मैं पागल हूं जो उनके सामने तुम्हें यूं कमरे में लेकर आता। सूफी जो घोर कर बुड़बुड़ाते हुए बोली, खुद तो पागलों के भी सरदार हो और मुझे भी पागल बना रहे हो। भला ये कैसे हो सकता कि नीचे से ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा? मैं मुस्कुराते हुए बोला, 1 मिनट बताता हूं। ये कहकर मैं सूफी के सामने पैरों के बिल बैठकर ऊपर देखते हुए बोला, ये देखो, अब मुझे तुम्हारी गर्दन नजर नहीं आ रही क्योंकि आगे तुम्हारे पस्तानों ने दीवार खड़ी कर दी है। मेरी बात सुनकर सूफी उफ कहते हुए अपना सर पकड़कर मेरे पागलपन पर मुझे कोसने लग गई। मैं जल्दी से खड़ा हुआ। इससे पहले कि सूफी कुछ समझती, अगले ही लम्हे मैंने सूफी के बुड़बुड़ाते हुए रस भरे होंठों को लेकर पागलपन दुखाना शुरू कर दिया। सूफी हम करते हुए मेरी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सूफी के एहतजाज का तसलसल देखकर मैं झुंझलाकर सूफी से हटाकर बोला, क्या है यार, नखरे की भी हद होती है। कहा भी है कि नीचे से ऊपर कुछ नजर नहीं आता, फिर भी तुम ड्रामे कर रही हो। सीधी तरह कहो कि मुझसे तुम जान छुड़वा रही हो। ये कहकर मैं सूफी से एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे वो लहजे में की गई बात सुनकर मुझे नजर टका कर देखती रही। चंद लम्हों बाद सूफी जंगली बली की तरह मुझ पर झपटी और मेरे सीने पर हाथ मारते हुए मुझे पीछे धक्का देकर बोली, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे जान छुड़वा रही हूं। ये कहकर फिर सूफी ने मेरे सीने पर दोनों हाथ मारते हुए मुझे पीछे धकेलकर गुल्लूगीर लहजे में कहा, मैं तुमसे जान छुड़वा रही हूं जो तुम्हारी हर सांस के साथ सांस लेती हूं।
जो तुम लम्हा भर की जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, जो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है। तुम उसे कह रहे हो कि तुमसे जान छुड़वा रही है। सूफी तो एकदम से आपे से बाहर हो गई। हालांकि जान छुड़वाने वाली बात मैंने मजाक में की थी, मगर वो पगली जिंदा होने की बात को मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सूफी का जारहाना अंदाज देखकर मुझे इस पर इंतहाई प्यार आ रहा था। एक लम्हे में इसकी सिया मोटी झेल सी फैली हुई आंखों से मोती टपकना शुरू हो गए थे। सूफी ने मुझे पीछे की जानिब धक्के देते हुए दीवार के साथ लगा दिया तो सूफी कुछ ज्यादा ही जज्बात में आ गई थी। मैं संजीदा होकर आंसुओं से भीगे सूफी के रुखसारों को हाथों के प्यालों में लेकर बोला, ओ मेरी जान दे टूटे क्यों रो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। सूफी मेरी हाथों से अपने रुखसार छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं नहीं बोलती तुमसे। मैं कहका लगाकर हंसते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, बीवी इतनी खूबसूरत भी ना हो कि हर वक्त मिन्नतें करके मनाना पड़े। सूफी बोली, और किसी का शौहर भी इतना संगदिल ना हो कि जब चाहे जान छुड़वाने वाली बात कर दे। मैं सूफी की गाल छोड़कर अपने दोनों कान पकड़कर बोला, ये देखो मेरे बाप की भी तौबा, अगर दोबारा मजाक में भी ऐसी बात करूं। ये कहकर मैं नीचे बैठकर खड़ा होते हुए पुश अप लगाते हुए 1 2 3 4 गिनने लगा। 4 पर ही सूफी आगे बढ़ी और मेरी कलाइयां पकड़कर मेरे हाथों से तान छिड़वाते हुए बोली, बस करो ड्रामेबाजी। ये कहते हुए सूफी मुस्कुराकर अपनी मुस्कुराहट को रोमांटिक रंग देते हुए मेरे हाथों को मेरे सर के अतराफ में दीवार के साथ लगाकर स्लो मोशन में अपनी गुलाब की ताजा पत्तियों को मेरे होंठों के करीब लाने लगी। सूफी की गर्म सांसों को महसूस करके मुझ पर खुमारी सी छा गई। साथ ही मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगे, जैसे सूफी ने कोई इस्म आजम पढ़कर मुझ पर फूंक दिया हो। मैंने मस्ती में आंखें बंद करके हुसैन ख्वाबों में खो गया। अगले ही लम्हे मेरे कानों में रस घोलते हुए सूफी की रोमांटिक आवाज गूंजने लगी, पतझड़ से गल्ला है, शिकायत हुआ से है, फूलों को कुछ अजीब मोहब्बत हुआ से है, सरशारी शिगुफ्तगी गिल को किया मंसूब एक और हकायत हुआ से है, रखा है आंधियों ने ही हमको कशीदा में वो चराग हों जिसे निस्बत हुआ से है। सूफी का अंदाज और उसकी मीठी आवाज ने मुझे किसी और दुनिया में ही पहुंचा दिया था। मेरा वजूद दीवार के साथ लगा हुआ था, जबकि मेरी रूह सूफी के कब्जे में थी। जैसे ही सूफी ने गजल का इख्तिताम किया, साथ ही सूफी ने मेरे कान के नीचे गर्दन पर अपने नर्म होंठ रख दिए। मैं लाख कोशिश के बावजूद सस्कारी को रोक नहीं सका। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सूफी के हाथों में कैद अपने हाथ आजाद करवा के लम्हा भर में इसकी गर्दन को पुश्त की जानिब से पकड़कर उसके गुलाब जैसे चेहरे पर सज्जी गुलाब की पत्तियों का सारा रस निचोड़ डालूं। सूफी की कुर्बत में ना ही दिमाग में किसी किस्म का फतूर था, अलिफ गिर कुछ था तो मोहब्बत थी, सुकून था, जो सिर्फ और सिर्फ सूफी की कुर्बत में भी नसीब होता था। सूफी ने मेरी गर्दन पर होंठ सजाकर जब जुबान निकालकर मेरी गर्दन पर तिलिस्मी लकीर खींची तो मेरा जिस्म इस तरह कपकपा जैसे कनवारी लड़की को नामहरम मर्द का हाथ लगने से इसका जिस्म खौफ से कपकपा उठता है। सूफी जुबान की लकीर खींचकर मुझसे सीखा हुआ अमल मेरे पर आजमाते हुए मेरे कान की लू के नीचे जुबान ले जाकर जब सूफी ने मेरे कान को अपने होंठों में भरकर गहरी सांस छोड़ी तो मैंने आह करते हुए सूफी के हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में भींचकर झटके से हाथ नीचे ले जाकर सूफी के दोनों हाथ इसकी कमर के पीछे करते ही इसे घुमाकर अपनी जगह पर दीवार के साथ लगाकर खुद इसके सामने आ गया। ये तेरे सुर्ख होंठ पर एक बोसा निगाह, तेरे सुर्ख होंठ पर तेरी नसीहतों पे हुआ दिल फरिफ्ता, कैसी है दरसगा। तेरे सुर्ख होंठ पर मेरी मोहब्बतों से मुनव्वर है तेरा दिल, झलमल है मेरी जा। तेरे सुर्ख होंठ पर ऐसा लगा कि मैं तो जान से गया, आया दिल हो गया तबाह। तेरे सुर्ख होंठ पर। मिलते हैं बहुत जल्द अगली अपडेट में। खुश रहो और अपनी सपोर्ट दिखाते जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी मज़े मज़े की एपिसोड बनाता रहूं।